Hey guys, how you all are? Hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. It has been a long to come up and teach you a chapter. I think you should to reach the high level of history. So starting this course for you and the ongoing course will be denied because I think you all are self-sufficient for it. First, I will cover all the aspect of history, including the NCRTs, etc., starting with Asian history. Then we will move towards medieval and modern one. Then will come the aspect of geography. We'll go subject wise and then it varies from NCRT to standard level. Now this is a book I am following. It's of Ramcharan Sharma, and today we are going to cover the significance of the significance of Asian Indian history. This chapter mainly deals with the why we need to study history. So let's get started and let me make my toolbox ready for it. Okay, brush I'm gonna use. Let us focus on the sections. The study of ancient Indian history is important for several reasons. What are the reasons? It tells us how, when, and where people developed the earliest culture in India. It's mean to say that कब, कहाँ और कैसे, what was the reason, why it was there, क्यों वहाँ पे और कब, उस टाइम पे ही क्यों. ये सारे जो रीज़न हो हमको पता चलता है हिस्ट्री की वजह से. इसमें बहुत कुछ ही हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमको पता चलता है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उस टाइम पे कैसे वो लोग यूटिलाइज किया करते थे. मीन्स फॉर देयर लाइवलीहुड, क्या मीन्स होते थे, क्या वो लोग हंटर गैदर करते थे, या वो लोग एग्रीकल्चर करते थे या हंटर गैदरिंग करते थे. वी गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द एशियन इनहेबिटेंट मेड अरेंजमेंट ऑफ फूड, क्या खाया करते थे, वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे. ओके, कैसे उन्होंने वेबिंग सीखा, मेटल वर्किंग सीखा, लाइक क्लियर कैसे फॉरेस्ट को क्लियर किया. अब देखो, पीपल आर नॉट कंसिडर सिविलाइज. पीपल को सिविलाइज तब तक नहीं माना जाता जब तक उन्हें लिखना ना आता हो. ठीक है. द डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग प्रिवलेंट इन इंडिया टुडे आर ऑल डिराइव फ्रॉम एशियन स्क्रिप्ट. जो डिफरेंट टाइप ऑफ people are not considered civilized, we have done it. This is also true of the language that we speak today. The language we use have rooted in ancient time and have developed through the ages. This means that the writing we all are doing means, suppose a script coming that Sanskrit is regarded as the mother of all languages, right? So the Sanskrit is the language from which the today's language which we speak derived from Devanagari script. I think you all are just aware of these terms. Unity in diversity. That means there were many type of people invading India, including pre-Aryans, Indo-Aryans, Greeks, Scythians, known as Turks, and other made India their home. Each ethnic group contributed its mighty to the evolution of Indian social system, art and architecture, language and literature. All these people and their culture traits combined so interactively that currently they can be clearly identified in their original form. That's mean to say that ये सारे कल्चर इतने अच्छे से खुद में मिंट कर गए जिससे आज उनका ओरिजिनल फॉर्म पता करना मुश्किल होता है. That's mean that there was a lot of diverse nature of the society, still there was some unity. A remarkable feature of Asian Indian culture has been the commingling of culture from north south and from the east and west. That's mean हर साइड से हर जगह से, ओके हियर इट इज़, हर साइड से हर जगह से कल्चर का कमिलिंग होता था. आर्यंस जो थे वो वैदिक एज में पुरानिक जो नॉर्थ में थे. प्री आर्यंस द्रविडियन एंड तमिल कल्चर जो था वो साउथ में था. मुंडा, द्रविडियन एंड अदर नॉन संस्कृतिक टर्म वैदिक टेक्स्ट में ऑकर किए हैं. दैट्स मीन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सॉरी, वेट. यहाँ पे थे हमारे वैदिक वाले पीपल. अब ये वाले तीनों जो थे, यहाँ का जो टर्म्स है यहाँ पे कमिंग किया है. इन तीनों एरिया का कमिंगल यहाँ पे हुआ है वेस्ट में,
और ऐसे ही करके ये जो है इंटरेक्ट किया करते थे। ओके, तो यहाँ तक हमने पूरे ये वाले पोर्शन में जो है वही बात किया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा ये किया जाता है और कहाँ पे क्या। इसमें प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम अंडरलाइनिंग दैट, उससे आप लोग ये कर लो। ओके, बिकॉज मैं मार्क करवा पा रही हूँ, बिकॉज इन माई बुक इट इज़ मेंशन्ड एंड आई हैव मार्क्ड इट। The Asian Stop for Unity. The Indian subcontinent was geographically called defined for geographical unity. ओके, तो देखो वो इंडिया का सिर्फ कल्चरल यूनिटी नहीं था या कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं था, अलॉन्ग विद जोग्राफिकली भी वो यूनाइटेड थी, डाइवर्स थी लेकिन यूनाइटेड थी। ओके, on the basis of states, language, culture, community, gradually people developed territorial identity. It was in महाजनता phase जहाँ पे टेरिटोरियल आइडेंटिटी हमने गेन किया। द स्टेट यूनिट को जनपदस्थ करने लगे और बाय डिफरेंट टाइप्स के नेम से। अब यहाँ पे बात करते हैं द नेम ऑफ इंडिया। अब ये वाला पोर्शन जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाउएवर कंट्री एज होल टू बी नेम एज आर्यवत्र, मतलब ये जो हमारा इंडिया है, सॉरी मुझे को ड्रॉ करने नहीं आता बट स्टिल इंडिया जो है हमारा पोर्शन, इन्हें आर्यवत्र कहने लग गए। उसके बाद नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया को फिर आर्यवत्र कहने लगे, फिर इसे भारतवर्षा, आफ्टर दैट वी कॉल टू नेम एज भारतवर्षा, जो टुडे भी भारतवर्षा। दैट्स मीन इस वाले रीजन में एक ट्राइब रहा करती थी जिसका नाम था भरत ट्राइब, और तुमने महाभारत तो सुना ही होगा। दैट्स मीन भरत ट्राइब, उनके नेम से इन्हें भारतवर्षा कहने लग गया, जो कि अभी भी हम लोग भारत यूज़ करते हैं। इन G20 वी हैव यूज दैट। ओके, ऋग्वेद महाभारत मैंने मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं वो इंडिया कहाँ से आया, इंडिया का ओरिजिन यहाँ पे पता चलेगा हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या, वो इरानियन इंस्क्रिप्शन जो है वो ओरिजिन ऑफ टर्म हिंदू बताती है। कैसे हुआ ये ओरिजिन ऑफ हिंदू? फ्रॉम सिंधु। वी ऑल नो दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दैट्स मीन दैट देयर वाज अ रिवर कॉल्ड एज सिंधु, फ्रॉम विच वी कॉल्ड द सिविलाइजेशन एज सिंधु इन द नेम ऑफ दैट रिवर, राइट। सो उससे ही द इरानियन इंस्क्रिप्शन फर्स्ट मेंशन हिंदू एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडस। Then they therefore Hindu mean a territorial unity and neither indicate a religion nor a community. That's mean हिंदू जो थे पहले उन्हें कोई नेदर एक कम्युनिटी ना ही कोई रिलीजन माना जाता था, पहले सिर्फ वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी ऑफ द इंडस प्लेन। ओके, आवर पोएट एंड फिलोसोफर राइटर व्यू द कंट्री एज एन इंटरगल यूनिट। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो पर्सन किंग फ्रॉम हिमालय टू केप ऑफ कॉमरिन एंड फ्रॉम द वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड लैंड बियॉन्ड द इंडस, ये पूरे को जो लोग कैप्चर कर ले उन्हें कहा जाता था चक्रवर्तीस। ओके, नाउ अशोका एक्सटेंड हिज एम्पायर ओवर द होल इंडिया। अशोका को कहा जाता था चक्रवर्ती, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। Samudragupta is said to be Chakraborty. Pulakshin defeated Harshavardhana, the Lord of North. Harshavardhana was the Lord of North. Okay. Done. The unity of India was also recognized by foreigners. First come in contact with the people living in Sindhu, क्योंकि वो लोग का जो इन्वेशन होता था मेनली ऑफ दिस साइड, वो लोग इस वाले एरिया पे इन्वेट किया करते थे, तब सी रूट टू बू रूट का इन्वेशन बहुत ही कम हुआ करता था। ओके, शिट व्हाट्स हैपन या। ओके, इंडिया कहाँ से आया? तो अब जो सिंधु था ना वो अब क्या यूज़ होने लगा? इंडू, इंडू, इंडिया, इंडिका। दैट्स मीन वो सारे से बोलते बोलते अब इंडिका आ गया। ऐसे ही ओरिजिन हुआ कौन कौन से शब्द का? पहले तो मैंने हम लोग भारत समझे, इंडिया समझा और फिर हिंदू समझा। अब आ गया हिंदू से इंडिया केम टू बी कॉल्ड एज हिंद इन पर्शियन। अब ये चारों नाम का ओरिजिन हमने देख लिया। वी फाइंड कंटिन्यूइंग एफर्ट टू एस्टैब्लिश लिंग्विस्टिक एंड कल्चर यूनिटी इन इंडिया इन 3rd century। प्रकृत सर्व, अब प्रकृत सर्व किया कौन? 3rd century में बहुत अच्छा लैंग्वेज। फिर अशोका इंस्क्रिप्शन जो प्रकृत में
प्रकृत एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट से लिखी जाती है, और प्रकृत जो है इट्स इजीली अंडरस्टैंड बाय अ कॉमन मैसेज ऑफ पीपल. ओके, लेटर संस्कृत जो था एक सेम पोजीशन ऑफ क्या किया, क्योंकि लेटर ऑन द जो डायनेस्टी थी वो ब्राह्मणाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा मिला. Although India witnessed a rise in numerous small states during the post-Gupta period, and the official documents were written in Sanskrit. I think this is clear to you all. अब नोटेबल फैक्टर रामायण एंड महाभारत जो थे वो सेम जो सबको ही पूरे अक्रॉस द इंडिया वो सर्व करती थी एज अ होली बुक, बट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, तमिलनाडु में तमिल में, फिर नॉर्थन इंडिया द लैंग्वेज स्पोकन देयर, तो उसे कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसलेट किया जाता था. ओके, this mark here also. Okay, Indian history is especially worthy of our attention because of peculiar type of social system which developed in India. In North India, the Varna caste system था यहाँ पे basically. Even Christian and Muslim जो थे वो भी इससे influenced थे by the Varna system. Even convert Christianity and Islam continued some of their old caste practices of the Hindus. That's mean कि जो लोग कन्वर्टेड थे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन वो लोग स्टिल नाउ, मतलब अभी तक मैं एम नॉट सेइंग एट दैट मोमेंट जब वो लोग कन्वर्टेड थे, स्टिल दे यूज देयर ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ओन कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर. ओके, द रिवेलेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट. यहाँ पे जो मार्क कर रही हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट पढ़ लो अच्छे से, ठीक है. Let me just mark this one. This is different from a concern for preservation of Asian heritage in art and culture, what they really want to bring back in old pattern of society. Okay. Some people, यहाँ से पढ़ रहे हम लोग पूरा. Some people clamor for the restoration of Asian culture and civilization and substance. अच्छा, कुछ people बोलते हैं कि हमें back to our past, back to our glory पे जाना चाहिए. तो क्या वो लोग कंसर्न है इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, या सोशली जो बैकवर्डनेस थी उसके बारे में? डाउटली, लेकिन फिर स्टिल इंडिया जो है वैरायटी ऑफ फील्ड में प्रोग्रेसिव थी. ओके, बट दीज एडवांसेस अलोन कैन नॉट एनेबल अस टू कंप्लीट दिस अचीवमेंट of modern science and technology. We cannot ignore the fact that India was marked a gross social injustice. Yeah, in Asian Indian history was full of injustice. लो ऑर्डर, जैसे कि शुद्रास, अनटचेबल्स, इन लोग को बहुत गंदा ट्रीट किया जाता है. हु वाज शुद्रास, मैं बता देती हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल. फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन इन फेवर ऑफ मैन. फिर यहाँ पे बहुत सारी इनक्वालिटीज़ थी, मैंने बता दिया पहले ही. डिफ़िकल्टी प्रेजेंट बाय नेम ऑफ ह्यूमन पैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लीव दैट. ये सारे फैक्टर मिल के हमें ये करता है कि हमको पास्ट जो है उसका सही मतलब, हमें रैशनल व्यू लेना है. जो अच्छा है उसे लेना है, जो ख़राब है उसे निकालना है. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट in that society too there was something which was bad, there was something which was good. Okay, we have survival of Asian medieval and later time persisting in the present. The old norms, value, social custom. Okay. Okay, unfortunately, these survivals inhibit that development of individual of the country and were deliberately forested in colonial time. India cannot develop rapidly unless such vestiges of past are eradicated from its society. अगर इंडिया को डेवलपमेंट करना था तो जो सारे इरिडिकेशन से evil practices थी in our society we have to educate that, वरना उसके बाद फिर ये नहीं होता, इंडिया जो था प्रोग्रेस नहीं में कर पाता. Though women have been enfranchised, the age-old social subordinate prevent from the playing their due role in the society, and this is true too of the lower order of the society. Studying the Asian past help us to deeply examine the root of these prejudice. क्या हमें पता चलता है द रूट, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, व्हाट, कुछ तो रीज़न हुआ होगा. एंड प्रमोट नैरो रिलीजियस सर्कमस्टांसेस, सेक्टरिज्म.
The study of Asian Indian history is therefore relevant not only to those who want to understand the true nature of the past, but also to those who seek to understand the nature of obstacles that hamper inner progress nation. दिस चैप्टर वॉज अ शॉर्ट चैप्टर मैं बोलूँगी इसीलिए हुआ, तुम लोग बोल रहे हो कि मैम 5 पेज का चैप्टर था, स्टिल आप इसे छोटा बोल रहे हो। मैं छोटा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इससे बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे तुम लोग को पढ़ने के लिए और तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी तुमको याद नहीं करनी है बिकॉज बहुत सारे क्रोनोलॉजी याद नहीं करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू मेक अ टाइम लाइन। यहाँ पे एक टाइम लाइन बना लो शांति से। 15 यहाँ से यहाँ तक ये कर लो, मेंशन कर दो नाम, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे बना लो, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो एंड मेंशन दिस। तो ऐसे क्या होगा, आपके पास अपना खुद का एक टाइमलाइन होगा एंड टाइमलाइन को देखना अगर आप कहीं रख भी दोगे ना तो रोज़ दिन अगर उस पर ध्यान जाता रहेगा तुमको याद हो जाएगा। एंड ये कुछ डेट तुमको अच्छे से याद नहीं करनी, हाँ ये ही डेट होना चाहिए, बस अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया होना चाहिए। हिस्ट्री इज़ नॉट द स्टडी ऑफ डेट, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम। ओके, हम लोग हिस्ट्री को मेनली कनेक्ट करते हैं विद द डेट्स। नो, डेट्स सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली बताने के लिए होती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी। तो ये वाले चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला है। ये चैप्टर कितने पेजेस का देखना है बताती हूँ, रुक जाओ। दिस चैप्टर इज ऑफ पेजेस ऑफ 7 पेज, बट एज पर द सिलेबस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई थिंक ये जो हमारा एशियन हिस्ट्री का जो कोर्स है ना, वी विल कंप्लीट दिस इन अप टू मतलब कितने दिन में, इन न्यू ईयर से पहले पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। न्यू ईयर से पहले पहले हम लोग इस हिस्ट्री से ओवर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट, नेम इज सरस्वती, check out @Ananya3019. Okay, so share this video to all of you who want to study Asian history past, and if you are having any kind of problem you could comment in the videos. Stay tuned for more updates. Thanks.